Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. A very good evening to everyone. Today's topic is the most important topic because it is NEP National Education Policy 2020. Rashtriya Shiksha Niti. It is important for upcoming CTET exam, EMRS, DSSB, NVS, KVS, STET and any teaching exam in India. In this video, you will find the detailed explanation with cue points. So let's start the video. First of all, we should know who is the father of NEP 2020. So Manmohan Singh is the father of new economic policy in India. Underline it and note down it. It is very important. Who is the father of NEP 2020? So it is Manmohan Singh. Next is, what is the motto of NEP 2020? The new education policy was released under the Government of India's Ministry of Human Resources Development, that is MHRD, on 30th July 2020. With the motto of educate, encourage, enlighten. It is very important, note down it. E3, it is also known as, what is E3 in new NEP? First is educate, encourage and enlighten. This is the first education policy to be released in the last 34 years in India. जो हमारी लास्ट NEP थी और दैट वाज ऑन 1986. उसके बाद ये फर्स्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो रिलीज हुई है आफ्टर 35 years. Who adopted NEP first? कौन सा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंटेशन किया, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन किया न्यू NEP का, दैट इज 2020. In early August 2021, Karnataka became the first state to issue an order with regard to implementing NEP. Make it star here. It is also very important. Note down it. In early August 2021, Karnataka became the first state. कर्नाटका एक प्रथम राज्य था जो जिसने ऑर्डर पास किया विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटिंग NEP को लागू करने का फर्स्ट ऑर्डर दिया गया कर्नाटका में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. लेट्स नो अबाउट इट. व्हाट इज स्पेशल इन दिस पॉलिसी? द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ NEP 1986 मॉडिफाइड इन 1992. जो हमारी इससे प्रायर प्रीवियस पॉलिसी थी दैट इज़ ऑन 1986, उसको मॉडिफाइड किया गया था 1992 में. इज़ अप्रोप्रिएटली डील्ड विद इन दिस पॉलिसी. जो अनफिनिश्ड एजेंडाज थे, जो टारगेट अचीव करने के लिए सोचा गया था 1986 की पॉलिसी में, वो उन इनकम्प्लीट टारगेट्स को पूरा करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया. A major developments is the last policy of 1986/92, because on 92 it was modified, has been the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, which laid down legal underpinnings for achieving universal elementary education. ओके जो मेजर प्रायोरिटी थी, मेजर टारगेट था लास्ट NEP का, दैट इज़ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. उसको कंप्लीट करने के लिए दैट इज़ द मेन टारगेट इन दिस पॉलिसी ऑल्सो टू कंप्लीट दैट. द फर्स्ट NEP was promulgated by the Government of India by Prime Minister Indira Gandhi in 1968. Make it a star here also. It is also very important because जो first NEP थी हमारी, that was in the time of Prime Minister Indira Gandhi in 1968, and the second was on by the Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986.
and the third by the Prime Minister Mr. Narendra Modi in 2020. तो अभी तक हमारी 3 NEP लॉन्च हुई हैं. फर्स्ट वन ऑन 1968, second on 1986, and third is on 2020. First one is in the time of Indira Gandhi, second on the time of Rajiv Gandhi, and latest one in the time of Mr. Narendra Modi. Okay. अंडरलाइन इट. कस्तूरी रंगन कमेटी डिजाइंड एनईपी. अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिजाइंड एनईपी, सो आंसर इज कस्तूरी रंगन कमेटी डिजाइंड एनईपी. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 NEP 2020 approved by the Union Cabinet of India on 29th July 2020. It is also important point. देखिए, मैंने आप सब लोगों के लिए जो NEP है हमारी, उसको समराइज करके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको इस PDF में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में सारा बताया गया है. सो एवरी लाइन एंड एवरी स्टैंडा इज इम्पोर्टेंट, नोट इट डाउन. अगर आपसे पूछा जाए कि हु अप्रूव्ड द NEP 2020, सो योर आंसर इज Union Cabinet of India on 29th July. When? 29th July 2020. Now, what are the main features of NEP 2020? अब हमारे जो न्यू NEP है 2020, इसमें मेन फीचर्स क्या है, इसमें क्या नया है, क्या टारगेट्स है, why it is so special. So first one is ensuring universal access at all levels of school education. Another is attaining foundational literacy and numeracy, जिसे कि आप FLN के नेम से भी जानते हैं कि जो FLN का टारगेट है वो ग्रेड 3 तक कंप्लीट करना है. मीन्स क्लास 3rd तक सभी बच्चों को जो FLN की बेसिक चीज़ें हैं, FLN टारगेट है, उसको अचीव करना नेसेसरी है. थर्ड इज़ रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडोलॉजी. जो स्कूल करिकुलम है उसके बारे में बताया गया है. एंड लास्ट वन इज़ फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, दैट इज़ ECC. फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में. मीन्स जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है स्टडिंग की, दैट इज़ 3+2 मीन्स 5. 3 years ऑन आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री प्राइमरी क्लासेस, दैट इज जिन्हें हम PG, LKG एंड UKG के नाम से भी जानते हैं. एंड सेकेंड इज फर्स्ट एंड सेकेंड. सो इन NEP 2020 children will spend 5 years in the foundation. It's very important. It is the structure of 5 + 3 + 3 and 4. जो हमारा ये 5 है, it is known as foundational stage. 3 indicate करता है preparatory stage, and another 3 is the middle stage, and last 4 is the secondary stage. With the help of a chart you can understand better. So let's see the chart. Where is? Yes, here is. This policy envisages that the extent 10+2 structure in school education will be modified with the new pedagogical and curricular restructuring of 5 + 3 + 3 + 4, covering ages 3 to 18 as shown in the representative figure, and elaborate in detail later under chapter 4. Okay. तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी ओल्ड NEP थी, दैट वाज 1986. एंड जो आपका ये कलरफुल वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको इंडिकेट करता है अबाउट द NEP 2020. सो व्हाट इज़ द बिगर एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉलिसी इज, ओके, जो हमारा 10+2 स्ट्रक्चर था प्रीवियस पॉलिसी का, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, 10 एजेस 6 to 16, जो 6 से स्टार्ट होता था, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10, दैट इज 10, एंड टू
11 12 सेकेंडरी क्लास के लिए। लेकिन जो हमारा जो न्यू पॉलिसी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए फर्स्ट इज़ फाउंडेशनल 3 years आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग, बाल वाटिका, जिसकी एज किससे स्टार्ट होगी, फ्रॉम 3 year to 6 year, एंड 2 years क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लास फर्स्ट की एज क्या है 6 एंड 6 to 8। देखिए हमारा जो क्लास 1 में एडमिशन लेने की, एंटर करने की दोनों पॉलिसी में एज क्या है वो सेम है, बट जो ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, प्री पेट्री है, जिसे आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग एंड बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, ये नया इंक्लूड किया गया है हमारी पॉलिसी में। ठीक है, इससे हम लोग फोकस कर सकते हैं ECCE में, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसका रिसेंट में अभी केवी ने आपको एक नोटिस रिलीज़ किया है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यस्टरडे बताया है। टू अपॉइंट द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर फाउंडेशनल स्टेज फॉर बाल वाटिका 3। न्यू क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इन ऑल केवीज आइडेंटिफाइड अराउंड 450 केवीज इन इंडिया। सो अनदर प्रीपेटरी क्लास इज फ्रॉम क्लास 3rd to 5। एज क्या होगी बच्चों की, फ्रॉम 8 years to 11। मिडिल एज क्लास 6 to 8 एंड एजेस 11 to 14। सेकेंडरी में एज क्या है, फ्रॉम क्लास 9 to 12। क्लास 9 से 12 क्लास तक बच्चे जो पीरियड स्टडी पीरियड टाइम है उसको सेकेंडरी के नेम से जाना जाता है, एंड एज क्या होगी उनकी, फ्रॉम 14 years to 18 years। दिस इज आर न्यू स्ट्रक्चर NAP 2020 एंड दिस इज ऑफ 1986, आर प्रीवियस academic structure. So the foundational pillars of NAP, what are the foundational pillars of NAP? Key points, NAP 2020 is based on 5 pillars and these are 5 जो main pillars हैं new NAP के। First one is access, equity, quality, affordability and accountability। इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द 5 pillars, 5 foundational pillars of NAP, that are access, equity, quality, affordability and accountability। लेट्स नो अबाउट द व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ NAP। हु इज की जगह आप यहाँ पे व्हाट आर कर लीजिएगा, दैट इज व्हाट आर। प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, स्पेलिंग PAL एंड PLE। दिस प्रिंसिपल इज मीन्स टू सिद्धांत। ओके, 2020 द की प्रिंसिपल ऑफ विच दिस NAP 2020 रेस्ट आर recognizing, identification and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing the teachers and parents etc। अब जो की प्रिंसिपल है NAP का वो ये है कि बच्चों की, प्रत्येक छात्र की जो यूनिक यानी कि अलग योग्यता है, कुशलता है, उसको पहचानना और उसका विकास करना, अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रू achieving foundational literacy and numeracy by all student by grade 3। So main principle and main priority is to identify the capabilities of unique capabilities of each student and promote them to achieve the highest achieving foundational literacy and numeracy by all student by grade 3। It's very important, note down it कि what are the principles of NAP 2020। the principle of NAP 2020 is to identify the unique capabilities and hidden capabilities of each student and promote him or her to achieve the foundational literacy and numeracy FLN by grade 3। now see पार्ट 2 में NAP के पार्ट 2 में हायर एजुकेशन के लिए क्या स्पेशल बताया गया है, क्या फोकस करने वाली चीज़ें हैं, लेट्स नो अबाउट इट। क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम।
A key goal of the new policy is to promote research and innovation. जो की गोल है एनईपी का वो क्या है? प्रमोट करना, प्रोत्साहन देना किसको? रिसर्च को एंड इनोवेशन को. अंडरलाइन इट. In fact, NEP aims to increase the gross enrollment ratio in higher education to 50% by 2035. अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टारगेट है टू इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, वो कब तक के लिए डिसाइड किया गया है, कब तक के लिए टारगेट किया गया है, किस ईयर तक अचीव करने के लिए, एंड हाउ मच कितना परसेंट? तो 50% बाय 2035 टू इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन. अब यहाँ पर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन आफ्टर सेकेंडरी क्लासेस. ओके. एंड व्हाट स्पेशल इन पार्ट थर्ड, अदर की एरियाज ऑफ फोकस. अब अलग क्या बताया गया है इसके अलावा? जो हमारे स्ट्रक्चर हो गया, पिलर्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, जो हमारा स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, इसके बाद क्या और अलग पॉइंट्स बताए गए हैं हायर एजुकेशन के लिए एनईपी में? दैट इज प्रोफेशनल एजुकेशन. ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग ईदर प्रोफेशनल और जनरल एजुकेशन will aim to organically evolve into the institutions clusters offering both seamlessly and in an integrated manner by 2030. अब प्रोफेशनल इस एजुकेशन के लिए जो एम डिसाइड किया गया है ऑर्गेनिकली इवॉल्व करने का, इनटू इंस्टीट्यूशंस या क्लस्टर दोनों ऑफर करेंगे, ठीक है, सीमलेसली इन इंटीग्रेटेड मैनर में अप टू बाय 2030. टारगेट कब तक के लिए डिसाइड है? 2030 के लिए. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फॉर अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अडल्ट एजुकेशन प्रमोट करने के लिए बताया गया, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जीवन पर्यंत चलने के अदगम जो है सीखना, जीवन पर्यंत सीखने के लिए कुछ ना कुछ इंगेज रखने के लिए. थर्ड इज प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर. अब इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आर्ट हैं, कल्चर है, इनको प्रमोट करने के लिए कहा गया है. ठीक है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं. जो हमारे लास्ट ईयर्स जो भी चला आ रहा है उनमें जो भी डिके हुए हैं टू नो इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में बच्चों को, यानी कि हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में उसको ऐड करने के लिए. लेट्स सी अनदर. यस, फोर्थ पॉइंट इज फॉर टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, प्रमोट करना है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को एंड इंटीग्रेशन को इन हायर सेकेंडरी लेवल पर. ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. लर्निंग में टेक्नोलॉजी के यूज के लिए बताया गया है. इन लर्निंग ऑल्सो, इन प्रोफेशनल क्लासेस ऑल्सो. And part fourth is making it happen, strengthening the central advisory board of education. स्ट्रेंथिंग करना यानी कि और मजबूत बनाना है किसको? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. जो ये शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, जो इसका बोर्ड है, इसको और स्ट्रेंथिंग करना है और मजबूत करना है बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स दैट इज told in NEP 2020. And another point is financing affordable and quality education for all. अब देखिए अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन में क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, समावेशी शिक्षा के बारे में. मीन्स लर्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए, सीखने के लिए. तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी हो? अफोर्डेबल हो, मीन्स सभी जो पेरेंट्स है उसको आसानी से अफोर्ड कर सकें, एंड क्वालिटी एजुकेशन हो. अब देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एनईपी के बारे में आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है. फ्रॉम स्लाइड्स 1, पेज 1. अबाउट फादर ऑफ एनईपी, द मेन मोटो ऑफ एनईपी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हु अडॉप्टेड एनईपी फर्स्ट, किस राज्य में एनईपी फर्स्ट इम्प्लीमेंट की गई है, अडॉप्ट किया किस राज्य ने. एंड अबाउट, yes, about first NEP, second
in the time of Indira Gandhi period, and third one is in the time period of Prime Minister Narendra Modi, and who designed NEP and who approved NEP, that is the Union Cabinet of India, when on 29th July 2020. मेन फीचर्स आपको याद करने हैं, मेन फीचर्स के बारे में बोल दिया जाएगा. सपोज ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको मेन फीचर्स हेयर आपको 4 बताए गए हैं, ओके. इसमें से 3 आपको दे दिए जाएंगे, 1 इनकरेक्ट दिया जाएगा. आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट करना है क्या इसमें से नहीं है. तो जब तक आप इसको NEP को डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि MRS PGT में 5 मार्क्स की आ रही है NEP, ओके. तो इस 5 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए, 5 मार्क्स लेने के लिए सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नहीं याद करना है कि स्ट्रक्चर क्या है, किसने डिज़ाइन किया, उसके अंदर डिटेल भी पढ़ना है आपको कि मेन फीचर्स क्या हैं, फाउंडेशनल पिलर्स क्या हैं, E3 क्या है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्ट्रक्चर्स में फाउंडेशनल एज क्या है, प्रिपेटरी एज में क्या स्पेशल है, पिलर्स के बारे में जो 5 आपको बताएं, दैट इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. एंड प्रिंसिपल्स हैं. हायर एजुकेशन में टारगेट जो रखा गया है टू अचीव द ग्रॉस एनरोलमेंट और इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035, ओके. एंड प्रोफेशनल स्टडी में क्या है, 2030 तक टारगेट किया गया है फॉर इंटीग्रेटिंग मैनर. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज़ नोट डाउन इट. एंड अपकमिंग वीडियोज़ में आप NEP के प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब